Thank you so much, Sundarji. And thank you, Dr. Rita Rani, for accepting our invitation to be the chief guest for today's webinar. I welcome all the educators to this webinar. I think this is going to be the last in the series, Sundarji. Yeah, this is Well, yeah, this is going to be last in the series. There is one which is happening next 2 months later, where only one value will be covered along with the valedictory. okay, Yeah. okay. So here we are now talking about two values, one for 10th standard, that is Learn Everything. The movie name is Learn Everything, and the value that we are going to talk about is openness. And the second one is relationships, that is for standard 11th and 12th. Friends, learn everything. Do you relate to this topic? आपको लग रहा है learn everything, we should be learning everything? Is it possible to learn everything? What are we talking when we are saying learn everything? In the chat box, please. Learn everything से क्या समझ आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं हम? Being open to learning, yes. What else? Okay, so let me share an example with you to introduce this topic. One of my clients, she had three daughters, and she had actually come to me for a parent education class, and she said that as they are growing up, it is becoming very challenging for me to manage these three girls. ये तीनों लड़कियां ना मेरा बिल्कुल दिमाग खराब कर देती हैं, क्योंकि कुछ भी काम नहीं करती हैं। स्कूल से आएंगी और बैग इधर, जूते इधर, मोजे इधर, ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठ जाएंगी, यूनिफॉर्म चेंज नहीं करेंगी, वहीं पे खाना खा लेंगी, वहीं पे प्लेट्स छोड़ देंगी। So she said that I am really disturbed by this behavior because in my family where I grew up, we were two sisters and two brothers, and we also belong to a very well-to-do family. पर हमारे फादर ने हम लोगों को सब कुछ सिखाया। लड़कियों को ही केवल कुकिंग नहीं सिखाई, हमारे भाइयों को भी कुकिंग सिखाई। लड़कों को केवल प्लम्बिंग और फ्यूज ठीक करना नहीं सिखाया, लड़कियों को भी सिखाया। गैस सिलेंडर कैसे चेंज करना है, लड़कों को भी सिखाया, लड़कियों को भी सिखाया। ही प्रिपेयर्ड अस फॉर लाइफ, not only for you know going to school, getting educated and getting a job. And I want to do that for my girls as well. I want them to learn everything. Now, my dear friends, what do you think about learn everything? I don't only want your opinions, I also want to know about your own experiences. आपके बचपन में क्या आपको ये कहा गया कि सबको सब कुछ आना चाहिए, और आपने क्या क्या सीखा, और उससे आपको क्या एडवांटेज हुआ? इन द चैट बॉक्स प्लीज। Varsha, she says yes. We fail and we learn from it. Yes. साक्षी, हाँ, स्विंग। हमारे बचपन में हमको ये चीजें सिखाए सिखाई गई। हमारी नानी और दादी स्पेशली बोलती थी कि नाड़ा डालना आना चाहिए। तो आप लोगों को याद है, टूटे हुए ब्रश में पीछे हम लोगों ने नाड़ा बांध कर और उसको ब्रश को डाल डाल के नाड़ा डालना सीखा था। और फिर उसके बाद में हम लोगों को ये भी सिखाया गया कि तुरपाई करनी आनी चाहिए। थोड़ी बहुत घर में सुइंग मशीन जो है उसको चलाना आना चाहिए, कपड़े रिपेयर करने आने चाहिए, हुक टाकना आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हमें सिखाई गई। मुझे मेरी नानी ने बुनाई भी सिखाई थी, क्रोशिया भी सिखाया था,
और हम लोगों ने रुमाल पर एम्ब्रॉयडरी करनी भी सीखी थी। हमारे बचपन में हमें पेंटिंग भी सिखाई गई, क्राफ्ट भी सिखाया गया। और जो जो हम लोग बनाते थे उसको दीवार पे सजा के रखा जाता था कि कभी लड़कियों को लड़का देखने वाले आएंगे तो उनको दिखाएंगे ये हमारी डॉटर ने बनाया है। सो these things were there in our childhood. And how has this changed now? Anybody wants to interact with me? You can unmute yourself. You can say in the chat box, we will unmute you. Nurja, yes. Yes, शिप्रा जी। हमें आप लोगों में से किन किन को सब्जी और फल खरीदना सिखाया गया था? किन किन को बाजार में ले जाते थे साथ में और बोलते थे कि ये देखो, ये जो बैंगन है जिसके डंठल पे कांटे होते हैं, ये वाला खरीदना चाहिए, ये अंदर से ऐसा निकलता है। ये वाला जो अमरूद है ये ऐसा निकलता है, ये वाला वाटरमेलन ऐसा निकलता है, ये वाले आम इस प्रजाति के हैं, ये वाले इस प्रजाति के। कितने लोगों को विभिन्न रंगों के, खुशबुओं के, आकारों के फूल पहचानने आते हैं। मुझे याद है हम लोग जब जाते थे तो हमें पता होता था कि ये कन्हेर है और ये वाला जो है पारिजात है, और इस फूल को ऐसे तोड़ा जाता है। पारिजात को जैसे कभी भी तोड़ा नहीं जाता, उसको छाड़ते हैं और झोली में कलेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें हमारे बच्चों को हमने सिखाई। तो देखिए, हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने फूल और फल पहचानना उस किताब में सीखा, एबीसीडी वाली किताब में। दिस इज मैरीगोल्ड, दिस इज सनफ्लावर, दिस इज दैट। असलियत में शायद हमारी जनरेशन ने उनको प्रकृति से जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना, संस्कारों से जोड़ना, उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चे फूल गोभी और पत्ता गोभी का ही फर्क पहचान ले तो बहुत है। क्या कहते हैं आप लोग? फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हमारी ये जो मानसिकता है एज पेरेंट्स कि नंबर आने केवल बहुत है, और अगर क्लास में फर्स्ट आ गया और इतने परसेंटेज आ गए तो लाइफ चल जाएगी और लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। उसमें हम, ये स्वरूप जी, स्वरूप जी को जरा अनम्यूट करिए। स्वरूप जी को कुछ शेयर करना है हमसे, उनको अनम्यूट करिए अरविंद जी। दोस्तों, हम जब लाइफ स्किल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक गाइडलाइंस है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और जिन्होंने हमें बताया कि 21st सेंचुरी स्किल्स में सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम होने वाला नहीं है। हमें बच्चों को और भी बहुत सारी चीजें सिखाकर उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो हमने लर्न एवरीथिंग या ओपननेस, ओपननेस मीन्स बीइंग ओपन, नॉट बीइंग रिजिड। ये नहीं सोचें कि नहीं हम तो ये नहीं सीखेंगे, ये तो छोटा काम है या ये बड़ा काम है, या इसकी इतनी उपयोगिता नहीं है, या ये तो हम किसी और से करवा लेंगे। इसकी बजाय बीइंग ओपन टू लर्न थिंग्स विच मेक यू इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसके ऊपर स्ट्रेस दे रही है कि हम स्किल्स, हैंड्स ऑन स्किल्स कितनी सिखा सकते हैं बच्चों को ड्यूरिंग देयर स्कूल टाइम, हम उनको कितना एक्सपोज कर सकते हैं। और इसी से एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है बच्चों का करियर। क्या आप लोग मुझे गैस करके बता सकते हैं
कि दुनिया में कितने तरह के करियर्स अवेलेबल हैं। एक करियर्स की लिस्ट अगर हम बनाएं, आज मैं आप सबको बोलूं कि मैं आपको 3 मिनट दे रही हूं और 3 मिनट में आप मुझे जितने करियर्स आपको पता है उसकी एक लिस्ट बना के दीजिए, तो आप कितने करियर्स की लिस्ट बना देंगे? 10, 15, 20, 25? अनलिमिटेड तो नहीं है शिप्रा जी, हैं तो लिमिटेड। हाँ, थाउजेंड्स हैं। कितने? 500? ओके। और कोई गैस करिए। जो लिस्टेड है, जो करियर डायरेक्टरी में है। 1000? यस। 200? ओके। देखिए, आज भी हमें, अगर हम परिवारों में करियर्स की बात करते हैं, तो बहुत लिमिटेड, 10 से 12 करियर्स के बाहर हम नहीं जाते। जो हमारे टाइम में तो सिर्फ 3 ही थे: डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या सीए बन जाओ। अब जाके हम कुछ और चीजों के बारे में भी सोचने लग गए। पर करियर्स की डायरेक्टरी में जो लिस्टेड है, वर्ल्ड की करियर्स की डायरेक्टरी में 12,000 करियर्स। और 12,000 करियर्स अलग अलग डोमेन नॉलेजेस से, अलग अलग स्किल्स से रिलेटेड है। तो हम 9th और 10th से ही बच्चों को अगर उनके भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम उनके अंदर ये भावना पैदा करना चाहते हैं कि यू कैन लर्न एवरीथिंग इफ यू कैन चूज। आपके अपने जो आंतरिक इंटरेस्ट है, अगर आप उसको जान पाए और आप अपने खुद के नेचुरल स्किल्स और एबिलिटीज को पहचान पाए, तो आप अपने लिए बहुत अच्छा करियर चूज कर सकते हैं। अह, अरविंद जी, आप दिखा रहे हैं क्या पोस्टर? जी। देखिए, इस प्रोजेक्ट को समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे जरूर पूछिए, वापस मैं फिर से समझाऊंगी। अरविंद जी, आपके इसमें ना नीचे एक ग्रे पट्टी नजर आ रही है मुझे। क्या सबको नजर आ रही है कि सिर्फ मुझे ही नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर? जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ढक जा रहा है पोस्टर। सबको नजर आ रही है ग्रे पट्टी। ये क्यों नजर आ रही है मुझे पता नहीं। हाँ जी। चलिए, तो आप थोड़ा ऊपर करिए इसको। स्टेप 1 दिखाइए, रिसर्च। स्टेप 1 में हम हमको सबसे पहले ग्रुप एक्टिविटी समझना है कि ग्रुप एक्टिविटी में हम ग्रुप्स असाइन करते हैं, बच्चों को ग्रुप्स में डालते हैं। और ग्रुप्स जो है वो टीचर कोऑर्डिनेटर जो है वो बनाता है। और उन्हीं ग्रुप्स को वो हेमा फाउंडेशन के पोर्टल पर अंकित करता है। तो उस हर ग्रुप में एक एक मेंबर को हम एक टास्क देंगे कि आपको एक पर्टिकुलर करियर के बारे में रिसर्च करके आना है। और उस रिसर्च में आपको उस करियर में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सैलरी रेंज क्या होती है, करियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारा रिसर्च करके एक प्रेजेंटेशन बनाना है। और फिर उसके बाद सेकंड में हम अपने जो प्रेजेंटेशन गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग इमेजेस और चार्ट्स लेकर उसका प्रेजेंटेशन पूरा तैयार कर रहे हैं। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप है, हम रिहर्सल कर रहे हैं सारे जितने भी, जैसे एक ग्रुप में 5 लोग हैं तो 5 आपके करियर्स बन गए। और फिर प्रेजेंटेशन वाले दिन वो 5 प्रेजेंटेशंस हर एक ग्रुप करता है। ऐसा करने से एक क्लास में लगभग जितनी भी उस क्लास की संख्या है उतने प्रेजेंटेशंस करने मिल जाते हैं और बच्चों को उतने करियर्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट है। और इस ग्रुप प्रोजेक्ट को जब आप कराएंगे, तो जितना भी बच्चों ने तैयार किया है मटेरियल और जो भी उन्होंने प्रेजेंटेशन डे के दिन प्रेजेंटेशन किया, उनके फोटोग्राफ समेत आप उसको वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट। इसको आप शेयरिंग को बंद कर दीजिए। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, जिसको हमने लिंक किया है हॉबी से। जब बच्चे 10th के बाद
हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उनसे एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज योर हॉबी। और कई बच्चों ने कोई हॉबी इनकलकेट ही नहीं की होती। तो हमने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इस पर बनाया कि क्या आप कोई एक हॉबी अपनाना चाहेंगे, और उस हॉबी को अपनाकर और उसके बाद में जैसे पोइट्री लिखना, या हॉबी हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। लिसनिंग टू म्यूजिक इज नॉट अ हॉबी, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज इज नॉट अ हॉबी। जो आप कर रहे हो एक्चुअली, आप काइनेस्थेटिकली अपनी बॉडी को, अपने हैंड्स को यूज करके जो कर रहे हो, वो हॉबी होती है। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हॉबी हो सकती है, डांस करना हॉबी हो सकती है, पेंट करना हॉबी हो सकती है। तो एक हॉबी उनको इनकलकेट कराना, और उसके साथ हम एक वर्कशीट देंगे जिसमें वो 21 डेज तक अपनी हॉबी से उनको कितनी खुशी मिल रही है और कितना सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिल रहा है, ये उसमें रेटिंग करेंगे 21 डेज तक। और 21 डेज तक उन्होंने लगातार मोटिवेटेड होकर ये हॉबी कर ली कंटिन्यू, तो ये उनके लिए एक नया स्किल बन जाएगी। ये है हमारा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लर्न एवरीथिंग या ओपननेस का। अब हम चलते हैं हमारी आज की सेकेंड वैल्यू के ऊपर, रिलेशनशिप्स। दोस्तों, रिलेशनशिप एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बनकर उभर रहा है अडोलेसेंट्स के लिए, खासकर जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं उनके लिए। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर स्ट्रेंजर लोगों से उनकी मुलाकात हो जा रही है, वहां पर कुछ अटैचमेंट्स बन जा रहे हैं, या क्लासरूम में भी कभी ऐसा हो रहा है जो अनसेफ रिलेशनशिप्स, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स उनके बन जा रहे हैं। उनको ये समझ नहीं है कि किसके साथ हमें कितनी फ्रेंडशिप करनी है। दोस्तों, मेरे पास एज अ साइकोलॉजिस्ट ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बच्चे इन सारे चक्करों में फंस जाते हैं। पेरेंट्स बहुत परेशान होकर उनको काउंसलिंग के लिए लेकर आते हैं। रिसेंटली मेरे पास दो दो केसेस हैं जिनमें से एक बच्ची जो है, बड़ी मैच्योर बच्ची है, अपने फादर की जगह वो बैंक की नौकरी में लगी फादर की डेथ के बाद। उसके बाद किसी लड़के से फेसबुक पे फ्रेंडशिप हो गई और वो 5-5, 10-10 हज़ार करके उससे पैसे लेता रहा। बच्ची देती रही उसे, उसे रियलाइज नहीं हुआ, और उसके बाद एक दिन अचानक जब उसने बहुत बड़ी रकम मांगी तो उसकी आंखें खुली और उसने सोचा नहीं, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। और उसने देखा कि मैं उसको अभी तक 8 लाख रुपए दे चुकी हूँ। उसके बाद वो आई घर पे, उसने शेयर किया, बहुत रोई, डिप्रेशन में चली गई। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों को रिलेशनशिप्स के प्रति जागरूक करना, उन्हें ये समझाना कि असली रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं, और पेरेंट्स को भी ये समझाना कि आप अगर अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, तो आप अपने बच्चों को खो देंगे। किसी ऐसे के हाथ बच्चे चले जाएंगे जिनसे अपनी वो बातें शेयर करने लगेंगे, जो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा। तो रिलेशनशिप्स को लेकर हमने दो प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें एक प्रोजेक्ट हमने जो बनाया वो है एक्टिव लिसनिंग के ऊपर, जिसमें हमने बच्चों को ये बोला, क्या आप वो दिखाएंगे, पोस्टर या पीपीटी दिखा दीजिए अरविंद जी। जिसमें हमने बच्चों को बोला कि अपनी करंट रिलेशनशिप्स में दो रिलेशनशिप्स आप चूज करें, एक अपने फ्रेंड की, एक अपने फैमिली मेंबर की, और देखिए कि उनकी रिलेशनशिप, उनके साथ आप कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स उनके साथ रिलेशनशिप में आ रही हैं। और अगर आप, जी, यस, सेफ सर्कल कॉन्सेप्ट। और और अगर आप उनके साथ नहीं सुन रहे हैं ठीक से, तो आप 15 मिनट अपना मोबाइल साइड में रख के उनकी बात को सुनिए और देखिए कि रिलेशनशिप में क्या फर्क आता है, क्या हमारी बॉन्डिंग उनके साथ स्ट्रेंथन होती है, क्या हमारा उनके साथ जो व्यवहार है उसको चेंज करने से रिलेशनशिप और रिच और फुलफिलिंग होने लगती है। इसके ऊपर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स और एक्शन प्लान फॉर एक्टिव लिसनिंग।
दूसरा जो ग्रुप प्रोजेक्ट हमने बनाया, उसमें हमने उनको एक केस स्टडी दी। आप इसको एक बार बंद कर दीजिए स्क्रीन को, मैं केस स्टडी सबको सुना देती हूँ। जिसमें हमने उनको बताया कि दो बच्चे हैं, दो जो आपस में बहुत, few of our teachers want to re-watch the webinar. This webinar is being telecasted on YouTube and Facebook, and it can be revisited. Dheeraj ji, you can share the link of the webinar uh, and on heme virtues as well. So friends, इस केस स्टडी में हमने क्या बोला कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को स्टडीज में हेल्प करते हैं, एक दूसरे के इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि लड़की के घर में कोई बात हो जाती है और वो लड़के को कहती है कि भाई मेरे को आपसे बात करनी है, तो वो कहता है कि आज मैं बिजी हूँ और मैं करता हूँ बात। पर कई दिनों तक के वो बात करने का उसे समय नहीं मिलता। फिर वो एक बार और कहती है कि आप मेरे लिए थोड़ा समय निकालिए, आधा घंटा, मुझे बात करनी है। पर वो लड़का अवेलेबल नहीं होता और वो कह देता है मेरी एग्जाम चल रही है, मैं स्ट्रेस में चल रहा हूँ, ये है वो है। एक दिन लड़की को पता चलता है कि वो लड़का दूसरे दोस्तों के साथ 2 दिन की ट्रिप पे गया है। तो उसे बहुत बुरा लग जाता है। वो सोचती है कि देखो मुझे तो समय दिया नहीं और दूसरे दोस्तों के साथ ये ट्रिप पे चले गए और मुझे बताया तक नहीं। और उसको बहुत अपसेट फील होता है, चीटेड फील होता है, डिसहार्टन फील होता है। उसको लगता है कि उसका विश्वास टूट गया और वो ना खाना खा रही है, ना सो रही है, रोए जा रही है। ऐसे में हमने बच्चों से पूछा कि अगर आप उनके काउंसलर होते तो आप उनको क्या सलाह देते। ये क्वेश्चन आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी। क्या कोई एक बंदा मुझे बताएगा कि आप क्या कैसे इस बच्चे को काउंसिल करेंगे? चैट में लिख सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। फिर वो जो लड़का है वो वापस आ गया ट्रिप से। फिर ये गई, इसने जाके बात की कि भाई आपने मुझे समय नहीं दिया। तो वो बच्चा जो है वो एकदम से डिफेंसिव हो गया और उसने कहा कि मैं स्ट्रेस में था, मुझे पूरा हक है कि मैं अपने लिए भी ब्रेक ले सकूं और मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी समय बिता सकूं। इसमें आप ऑब्जेक्ट करने वाली कोई नहीं होती है। इस बात से उसको और भी धक्का लगा। ये केस स्टडी हमने बच्चों को दी और हमने उनके ग्रुप्स बनाए और हमने बोला कि आपको रोल प्लेइंग करनी है। आप, वन ऑफ यू इज द बॉय, वन ऑफ यू इज द गर्ल। आपको अपनी अपनी पोजीशन लेना है और बाकी जो लोग हैं ग्रुप के वो काउंसलर हैं। वो एक आपका टीचर है, एक आपका थेरेपिस्ट है, एक आपका पेरेंट है, और आपको इनको समझाना है अपनी तरह से। फिर उसके बाद हमने प्रोटोकॉल दिया काउंसलिंग का, जो वो यूज कर सके। इस ग्रुप एक्टिविटी से आपको क्या लगता है क्या आउटकम होगा, क्या लर्निंग आउटकम होगा पूरी क्लास के लिए और इन बच्चों के लिए? अगर ये ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो क्या सीखेंगे इससे? चैट में बताइए या अनम्यूट भी कर सकते हैं आप अपने आप को। इस ग्रुप एक्टिविटी से वो ये सीखेंगे कि रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती है, कितना एक्सपेक्ट करना है और कितना एक्सपेक्ट नहीं करना है, कैसे रिलेशनशिप में अवेलेबिलिटी का, एक्सेसिबिलिटी का और रिस्पॉन्सिवनेस का स्कोप है। कैसे हम ये समझ पाए कि जब हम अनड्यूली इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, दैट इज अ रेसिपी फॉर पेन। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी उतना ही लागू है। ये है हमारे आज के 4 प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको प्रेजेंट किए। अंत में एक छोटा सा वीडियो एक्टिव लिसनिंग के ऊपर आपको दिखाएंगे अरविंद जी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
Thank you very much, Dr. Chinu ma'am, for sharing the thoughts about openness and relationship. The Pencil's Tale. Once upon a time, an old pencil maker took his newest pencil aside just before he was about to pack him into a box. Imagining the little fellow as a person, he recalled a few things about the pencil. "There are 5 things you need to know," he said to his pencil. "Before I send you out into the world, always remember these 5 things. Never forget them, and you will become the best pencil you can be." The first thing is to remember that you will be able to do many great things, but only if you put yourself in someone else's hands. From time to time, you will experience a painful sharpening, but remember that this will make you a better pencil. Also, keep in mind that you will be able to correct any mistakes you might make along the way. And the most important part of you is what's on the inside. And remember this as well. Upon every surface that you are used, you must leave your mark. No matter what else happens, you must continue to write. It seemed the pencil listened to him and promised he would remember these 5 things so that he could live his life with heart and purpose. You see, in life, in your life, put yourself in someone else's hand. Embrace challenges for growth. Learn from mistakes. Value inner qualities. And leave a positive mark on the world. And you too can become the best pencil there is. This was The Pencil's Tale, and this is Dare to Do Motivation. Thank you so much for watching, and stay blessed. Thank you, Chinu ma'am, for finding and sharing this video about the 5 aspects of the pencil. It's really a great one. Thank you, ma'am. Thanks for your wonderful session, Chinu ma'am.